Hello friends, welcome to my YouTube channel Stock Picking with Neeraj Kedia. Friends, today I am going to explain you a unique technique to value a company. As we all know that valuation of share is a very complex procedure which involves different techniques, methods, and in our stock market generally shares are valued either on fundamental basis or on technical basis, and most of us are neither fundamental analyst nor technical analyst. So what could we do? So there are two ways only. Either you could just go by the top recommendations, which generally doesn't work most of the time, or you could rely on financial advisor. Hence, I brought to you a unique technique or revolutionary tools to value a company, to be used by you all to identify your stock. But let me mention out here that same technique can't be used to value all the shares. So दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो काफ़ी स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि आज जो मैं टेक्निक लाया हूँ टू वैल्यू अ शेयर, ये द टेक्निक यू हैव नेवर एवर हर्ड, आपने कभी नहीं सुना होगा, कभी देखा भी नहीं होगा, क्योंकि ये मैंने खुद डिस्कवर किया है। और ये ऐसी टेक्निक है जिसके लिए आपको फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिस्ट होने की जरूरत नहीं है। जस्ट व्हाट यू विल हैव टू डू, you just forget everything for the next 5 to 7 minutes and keep focusing on me for the next 5-7 minutes and visualize. So दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको जस्ट अगले 5-7 मिनट के लिए फोकस करना है और जस्ट विजुअलाइज करना है। आप सब भूल जाओ और एक बार आप विजुअलाइज करो जो मैं कह रहा हूँ, एंड आफ्टर दैट यू विल फाइंड दैट कि जो टेक्निक मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ इट विल वर्क, इट इज गोइंग टू वर्क। एंड इसके लिए इफ यू आर लेमन ऑल्सो, देन ऑल्सो इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. So don't go by the quantum of the figures. Just to make you understand, I have taken here realistic figures. Say, suppose now you just keep focusing on me and you just concentrate. Say, I have received 1800 crore. I am taking 1800. I said I have taken the realistic figure. You might have 1800 or 18,000 or 18 lakh or 1,80,000, whatever. But to make you understand, I have taken this figure 1800 crore. So you assume that you have 1800 crore. Now how to spend this 1800 crore? Now the first thing, when you have 1800 crore, the first thing which will come to everyone's mind that to invest the entire sum into a fixed deposit. And the second point comes in our mind, that which bank is offering the maximum rate of interest on fixed deposit. So nowadays interest on fixed deposit offered by SBI is in the range of 2.9% to 5.4% only. And if we compare the interest rates being offered by all the banks, we would find that no rate goes beyond 7%. So the maximum rate is 7%. Now the 7% is not that enough. So we'll have to extend our research and look beyond this option. So when we will look beyond this option, we will find the solution. The solution is out here. Now, out of that 1800 crore, spending rupees 1718 crore, 1718 crore, we find a public-private company which is leader in its segment with market share of over 46%, 46.5%. So let's find out what could we get if we invest in this company. So दोस्तों, अगर हमारे पास 1800 करोड़ है
तो उसे हम कैसे इन्वेस्ट करें। ये 1800 करोड़ आपको जस्ट समझाने के लिए 1800 करोड़ का फिगर लिया गया है। आपके पास 18,000 भी हो सकते हैं, 18 लाख भी हो सकते हैं, 1800 भी हो सकते हैं, तो वो उस तरह से आप इसको देख सकते हैं। बट समझने के लिए 1800 करोड़ लें ताकि आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो सके। तो ये 1800 करोड़ को इन्वेस्ट हमने कहाँ किया, इसमें से 1718 करोड़ हमने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया जो कि एक पब्लिक प्राइवेट कंपनी है और अपने सेगमेंट में वो मार्केट लीडर है विथ 46.52% शेयर। तो अब इस कंपनी में इन्वेस्ट करके व्हाट कुड वी गेट, हमें क्या मिल सकता है, ये हमें देखना है। नाउ सबसे पहले अगर कंपनी हम खरीद रहे हैं तो हमको ये देखना जरूरी है कंपनी की टोटल सेल्स क्या है, टोटल इनकम क्या है, एनुअल इनकम क्या है। तो हमने अभी 1700 करोड़ इन्वेस्ट किया। नाउ कंपनी की टोटल इनकम FY20 लास्ट ईयर की FY20 की टोटल इनकम कंपनी की थी 18,124 करोड़, माने ओवर 10 टाइम्स ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट। हमने 1700 करोड़ इन्वेस्ट किया बट कंपनी की जो टोटल इनकम है, एनुअल इनकम है, वो 18,000 के ऊपर है। नाउ टोटल इनकम है बट अब प्रॉफिट भी देखनी पड़ेगी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या आ रहा है। ऑन द सेकंड पॉइंट, टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स was 406 crore, that is 24% of our investment। जो हमने इन्वेस्ट किया है 1718 करोड़, उसका 24% होता है 406 करोड़। थर्ड पॉइंट, डिविडेंड यील्ड ऑफ 9.48% on investment, which beats the best interest rate of 7% on fixed deposit significantly by around 36% over FD rate। अभी हमने FD इंटरेस्ट रेट के बारे में देखा कि वो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट तो 7% ही है, बट यहाँ पे डिविडेंड यील्ड की बात, डिविडेंड यील्ड आपको 9.48% मतलब 36% ऊपर है जो FD पे इंटरेस्ट मिल रहा था। तो ये एक पार्ट। द फोर्थ पॉइंट, डिविडेंड एट द रेट ऑफ 55% पेड बाय द कंपनी इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर FY20। तो ये डिविडेंड जो था 5 रुपीज 50 पैसे पर शेयर कंपनी ने अनाउंस किया था इन FY20। नाउ अब ये डिविडेंड देखते हैं, डिविडेंड कितना आता है पर शेयर। हमें 5 रुपीज 50 पैसे का डिविडेंड मिल रहा है। सो द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना, 29 करोड़ 60 लाख 8,321। डिविडेंड का जो फिगर आ रहा है वो आ रहा है 163 करोड़, दैट इज 9.48% of our investment. So by the end of third year, we could get back our total capital and continue earning for the rest of the life. अब यहाँ पे 3 साल में अपने को अपना कैपिटल पूरा मिल जा रहा है। अब one could argue that if company starts degrowing, अगर कंपनी डिग्रो करना स्टार्ट कर दे तो क्या होगा। तो इसके लिए अब क्योंकि अभी 2 क्वार्टर के रिजल्ट तो डिस्क्लोज हो चुके हैं। नाउ वी आर इन द मंथ ऑफ दिसंबर, सो वी हैव द हाफ ईयर्स फिगर, कंपनी के जो फर्स्ट 6 महीने के फिगर है वो तो आ गए हैं। तो अब वो देख लेते हैं हम, उससे हमें अंदाजा हो जाएगा वेदर कंपनी इज डिग्रोइंग और नॉट। तो कंपनी का हाफ ईयर्स टोटल इनकम एज रिपोर्टेड बाय द कंपनी is 10,636 करोड़, 10,636 करोड़। दैट इज मोर देन हाफ ऑफ द टोटल इनकम ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का इनकम कितना था, 18,000 करोड़ था, और इस साल 6 महीने में कंपनी ने 10,636 करोड़। तो वो हाफ से ज्यादा तो हो ही गए यहाँ पे, क्योंकि 6 मंथ्स में हाफ से ज्यादा हो चुका है। एंड प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट क्योंकि लास्ट प्रॉफिट 406 करोड़ की प्रॉफिट थी पूरे साल की। हाफ ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिपोर्टेड बाय द कंपनी इज 273 करोड़। अगेन ये हाफ से बहुत ज्यादा है। एंड द पॉइंट टू बी नोटेड आउट हियर इज कि ये जो 6 महीने के जो रिजल्ट है, 6 महीने की जो रिपोर्ट है, इसमें पहले 2 महीने में कंप्लीट लॉकडाउन था। ये वी ऑल नो दैट पहले 2 महीने अप्रैल में तो कंप्लीट लॉकडाउन में था। इन स्पाइट ऑफ दैट कंपनी के इनकम के फिगर एंड प्रॉफिट के फिगर, मतलब ये एकदम क्वाइट अमेजिंग है। अब अगर मैं कंपनी के नेटवर्थ की बात करूं
स्टैंड अलोन बेसिस पे बात करूं तो कंपनी का नेटवर्थ है 3513 करोड़, 3513 करोड़ का नेटवर्थ है. इज देयर एनीथिंग लेफ्ट टू अराइव एट द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी? यस, द मेन ट्रिगर इज आउट हियर. अभी भी ट्रिगर बाकी है आफ्टर दिस माउथ वाटरिंग वैल्यूएशन. वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रिगर फॉर द कंपनी इज दैट कंपनी इज गोइंग टू, दो सब्सिडरी है इसमें, एक कंपनी दिस कंपनी होल्ड्स 100% स्टेक और दूसरी जो कंपनी है उसमें कंपनी होल्ड्स 65% स्टेक. तो कंपनी नाउ इज प्लानिंग टू जस्ट रेज अराउंड 2000 करोड़ सेलिंग इट्स स्टेक इन बोथ द कंपनीज. ये दोनों कंपनी में जो कंपनी का स्टेक है वो कंपनी सेल करके 2000 करोड़ इनकी प्लानिंग है कि 2000 करोड़ वहां से वो रेस कर लेगी. अब ये तो बोनस हो गया क्योंकि हमने तो 1700 करोड़ इन्वेस्ट किया है और उसमें हमने सारे पैरामीटर्स पे, प्रॉफिटेबिलिटी पे और डिविडेंड पे सारा देख लिया हमने कि डिविडेंड यील्ड भी 9.48% आ रहा है, प्रॉफिट भी आ रही है, 3 साल में अपना पूरा कैपिटल रिटर्न आ रहा है और ये 2000 करोड़ एडिशनल है. 2000 करोड़ होगा या 1500 करोड़ होगा या 2500 करोड़, नोबडी नोस. ये पब्लिक प्राइवेट कंपनी है, ये है पीटीसी इंडिया लिमिटेड और इसकी जो दो सब्सिडरी की जो बात मैं कर रहा हूं, एक है पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड जिसमें कंपनी का 65% स्टेक है. अभी इसके जो रेवेन्यू थे वो करीबन 1370 करोड़ का रेवेन्यू और इसमें जो प्रॉफिट थी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 110 करोड़. और दूसरी जो कंपनी है पीटीसी एनर्जी लिमिटेड, इसमें 100% स्टेक था. इसकी भी सेल लास्ट ईयर की टोटल इनकम थी 305 करोड़ और इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थी 9.39 करोड़. ये दो सब्सिडियरी थी. नाउ ये जो पीटीसी इंडिया लिमिटेड, ये लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ पावर ट्रेडिंग सॉल्यूशन इन इंडिया एंड द कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1999 एज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया initiated public-private partnership. It holds Category 1 license from CERC, Central Electricity Regulatory Commission. ये Category 1 license hold करती है. The highest category है, ये highest category with permission to trade unlimited volumes. And this company, PTC India Limited, has maintained the largest market share since its inception and is number 1 in last 21 year of operation with a market share of 46.52% as compared to last year 45.47% था. तो यहाँ भी अपना शेयर ये गेन कर रही है. इसके कंप्यूटर कौन है? इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, टाटा पावर ट्रेडिंग कंपनी, PXIL है. एक बार कंप्यूटर को भी देखें तो इसमें इंडिया एनर्जी एक्सचेंज अभी 213 पे ट्रेड कर रही है. इसकी PE है 35.65. टाटा पावर कंपनी की PE है 22.06. इस कंपनी की पीटीसी इंडिया लिमिटेड की PE है 4.23. डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो डिविडेंड यील्ड इंडिया एनर्जी एक्सचेंज का 1.17% है, टाटा पावर कंपनी का 2.08% है एंड दिस कंपनी 9.48% का डिविडेंड यील्ड है. इस कंपनी के प्रोमोटर कौन है? तो इस कंपनी के प्रोमोटर है एनटीपीसी लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड NHPC. इंडिविजुअली होल्ड 4.05%, सब इंडिविजुअली 4.05%, इन टोटल 16.20% का वो कलेक्टिवली यहाँ होल्ड करते हैं. तो दे आर द प्रोमोटर्स और बाकी रेस्ट जो 83.80% है वो उसमें पावर सेक्टर एंटिटीज है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, LIC है, बाकी DI और FI है और थोड़ी बहुत पब्लिक होल्डिंग है. जैसे कि मार्केट शेयर तो मैंने बता ही चुका है. करंट प्राइस इस कंपनी की, अभी जो करंट प्राइस है ये सिर्फ 58 रुपीज पे ट्रेड कर रही है. इस कंपनी का 52 वीक हाई 69 है, 52 वीक लो इस 32 है, ऑल टाइम हाई है 193. स्टॉक की PE जैसे मैंने बता दिया 4.23 एंड कंपनी की बुक वैल्यू है 145. तो अपने बुक वैल्यू के 0.4 पे ये ट्रेड कर रही है. तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो और आशा करता हूं कि ये जो मेरी इन डेप्थ एनालिसिस थी और एक जो नई टेक्निक, जिस टेक्निक के आधार पर मैंने इस कंपनी का वैल्यू किया है,
आशा करता हूं कि आप सभी को ये पसंद आएगी और इस टेक्निक से आप समझ गए होंगे। आपको ऐसा कुछ मतलब फंडामेंटली या टेक्निकली बहुत ज्ञान होने की जरूरत नहीं है, बट यू जस्ट गो बाय दिस टेक्निक, यू कुड गेट योर शेयर। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।